Assalamualaikum kids. So in last lecture we talked about the charges. हमने charges के बारे में बात की थी. We talk about the electric fields and electric field are formed around the charges के charges के लिए कैसे electric field form होती है and how the positive replies to each other and along with that हम लोगों ने straight planes में भी check किया था कि electric field कैसे form होती है. So I'm resuming the lecture. Okay, so in this class we will talk about the electric current. बेटा electric current क्या होता है और इसके साथ साथ we will talk about the charge. हम लोग charge को कैसे find out करते हैं, किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज होता है हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. अलॉन्ग विद दैट हम फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे. सो electric charge. So what is the electric charge? It's the rate of flow of the electric charge or the electrons. Okay. Generally, we represent our charge with Q. This is a Q. This is a Q, and it's a Q upon T. That's a formula. Okay. Hold. Okay. So it's up to you. You can represent the current I with small q and t. It's up to you. आप इसको small q and t से भी represent कर सकते हैं and capital Q and T से भी represent कर सकते हैं. It's up to you. It's a capital Q to Q upon T and the Q is your charge जो हम लोग अब तक पीछे पढ़ते हुए आ रहे थे कि what is a charge, हम charge को define कर रहे थे. Okay. Now when you talk about the electric current, the unit of the electric current is this I's unit is that's a ampere. ओके. इसका यूनिट होता है एम्पियर. ओके. जो अब हमारे पास एम्पियर होता है वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट योर एम्पियर इज इक्वल टू द कूलम्स अपॉन सेकंड. ये कूलम्स अपॉन सेकंड के इक्वल होता है. कूलम्स इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिसने चार्जेस डिफाइन किए थे एंड द नेम ऑफ द चार्ज इज ऑन हिज नेम. ओके. नाउ मूविंग फर्दर. अच्छा बेटा व्हाट्स अ चार्ज. चार्ज हम लोगों ने पिछली क्लास में डिफाइन किया था कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसको हम लोग कहते हैं चार्ज. सो the charge is number of electrons and the charge of electron. That's a charge. That is a charge. ठीक है. Like for example, if I'm having a coulomb, तो मुझे coulombs पता है. I know the time. तो मैं उसके जरिए करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ. If I'm having a number of electron, मुझे पता है number of electrons कितने हैं. And I know the charge on the electron that is 1.6 multiplied by 10 raised to power as E is equal to 1.6 multiplied by 10 raised to power minus 19. Okay. So that's a coulomb. Okay. And C is capital. Okay. Make sure कि ये C capital लिखेंगे. It's इसमें यहाँ पे small लिखा हुआ है. So it's a capital C upon F. Okay. Now, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितने चार्जेस हैं एक कंडक्टर के अंदर. सो हम इसके जरिए चार्जेस फाइंड आउट लिस्ट कर सकते हैं. फ्रॉम अ चार्ज वी कैन फाइंड आउट द करंट. नाउ दैट्स एन एग्जांपल. A charge of 2 coulomb passes a point in a circuit in 5 seconds. Now, just remember one thing. When we talk about the current, हम लोग किसी एक specific point की बात करें. Like for example, we have a bulb, and we are saying that the current is moving from left to the right. So मैं इस spot पे देखूंगा कि मेरे पास कितने number of charges pass कर रहे हैं इस bulb को और वो कितनी देर में पास हुए हैं. तो दैट्स अ करंट. जनरली करंट किसे किसे जैसे कि अभी आपने देखा है द रेट ऑफ हमने ऊपर पढ़ा भी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है. सो इसका मतलब है कि कितनी जो हम जिस लाइट को या किसी भी कंडक्टर को या किसी भी स्पेसिफिक सर्किट की बात करें उसमें से कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास करें इन अ स्पेसिफिक टाइम दैट इज नोन एज करंट. ओके. सो I is equal to Q upon T. So we are dividing 2 upon 5 and we have 0.4 ampere current crossing the circuit. Now in this question, a current of a 2 milliampere, milli means 10 to the power minus 3. ये आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है. चार्जेस में ये आप लोगों को ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे. दिस मिली मीन्स 10 raised to power minus 3. ओके. ये टॉपिक हम लोगों ने भी स्टडी दिस टॉपिक बैक इन ग्रेड 9. हम लोगों ने 9 में पढ़ा हुआ था व्हेन वी वर स्टडीइंग चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने जितने भी साइंटिफिक नोटेशन एंड हमारे पास जो साइंटिफिक हमारे पास हमने जितने भी साइंटिफिक नोटेशंस एंड प्रीफिक्स पढ़े थे वी विल यूटिलाइज दोस हियर इन द इलेक्ट्रिकल चैप्टर इन इलेक्ट्रिक टॉपिक्स. ओके. तो हम लोगों ने पीछे जितने भी हमने साइंटिफिक नोटेशंस पढ़ी थी अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने जितने भी प्रीफिक्स पढ़े थे लाइक मिली हो गया, सेंटी हो गया, डेसी, किलो, मेगा, गैगा, ये हम लोगों ने पीछे क्लासेस में पढ़ चुके हैं बैक इन चैप्टर नंबर 1. सो वो सारे हम लोग इस चैप्टर में यूटिलाइज हो सकते हैं. नाउ no. Okay. So here the current is 200 multiplied by 10 to the power minus 3 ampere. And it's passing through a bulb in a 5 seconds. ठीक है. तो हमारे पास टाइम भी गिवन है. कैलकुलेट द चार्ज. हमें कहते हैं चार्ज फाइंड आउट करो एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन रिस्पेक्टिव. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. सो
As we know that I is equals to Q upon T. Capital Q लिख लिया, small q लिख लिया, it's up to you. Okay, I'm just going with the capital. Okay, capital Q upon T. Now we have now we are finding out the Q. हमें charge find out करना है, तो Q is equals to I times T. That's the formula. Okay, so just multiply these two values and you will find out the answer is 1 coulomb. So how many number of electrons are passing through it? So we know the formula, that is Q is equals to Ne. Q is equals to N, and E is the charge on electron. So we are trying to find out the N. So N हो जाएगा Q upon electrons, number charge on electron. So the answer is 6.25 multiplied by 10 to the power 18 electron. So एक अगर let's suppose if a 1 coulomb of charge is passing through any object in any specific time, it means that उसमें से 6.25 multiplied by 10 to the power 18 electron pass कर रहे हैं. For example, if I'm saying that this is a bulb, एक बल्ब है, डायग्राम, सर्किट डायग्राम, हम लोग बल्ब को इस तरह क्रॉस से शो करते हैं. So this is a bulb, and we are saying that that 1 coulomb of charge passed from this bulb. It means that कि इस बल्ब में से 6.25 multiplied by 10 to the power 8 10 to the power 18 electrons पास हुए. Okay? तो ये एक आपको इसके जरिए कोई चीज भी पता चलेगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होते हैं 1 कूलम में. नाउ बेटा लेट्स टॉक अबाउट द कन्वेंशनल करंट. अच्छा बेटा, जनरली हम लोग जो करंट के बारे में बात करते हैं, वी सेज दैट, हम लोग जो मतलब जनरली हम लोग हमेशा पढ़ते हुए आए हैं दैट इन अ सर्किट, लेट आई मेक अ सर्किट ओवर हियर. ओके, सो okay, so in a circuit I have a cell over here. अच्छा, one more thing. अच्छा बेटा, जो सेल के जो हमारी जो टर्मिनल्स होते हैं, जो हमारे पास जो थोड़ा सा लार्ज टर्मिनल होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है. जो स्मॉल टर्मिनल होता है दैट इज नेगेटिव. ओके बेटा, हम लोगों ने जो अब तक कॉन्सेप्ट हम लोग जो हम लोग कहते थे कि दैट द चार्ज इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स राइट. हम लोगों के पास जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव होता है. जब भी आप मिसाल के तौर पे आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव वन. ठीक है, आप इससे डिफाइन करोगे. ठीक है, so let I make it with some other color. Okay, so I'm going green red. Okay, तो बेटा आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि सर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है. आप हमेशा यही कहते हो. ठीक है, लेकिन बेटा कन्वेंशनल करंट जो है वो एक अलग मेथड है, एक अलग चीज एक्सप्लेन करता है. वो कहता है कि कन्वेंशनल का क्या मतलब है कि जो हम लोगों ने अपने लिए इजी एक वे सेलेक्ट किया होता है जो कि हमें समझ आ सके, द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. तो हम लोगों ने अपने लिए जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है दैट इज कि चार्ज, हमारे पास जो करंट होती है वो ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. हम लोगों ने अपने लिए कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है. जनरली इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन हम लोग कहते हैं करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांसफर होती है, मूव करती है. ये हम लोगों ने कन्वेंशनली अपने लिए एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, नाउ तो द कन्वेंशन करंट इज इट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, जो कि यहाँ पे मैंने आपको शो भी किया है. दिस ग्रीन वन इज एक्सप्लेनिंग द करंट, द कन्वेंशनल करंट, द कन्वेंशनल करंट्स डायरेक्शन. ओके, ये कन्वेंशनल करंट्स की डायरेक्शन है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज की डायरेक्शन होती है वो ये होती है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता है दैट द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. और हियर यहाँ पे हम लोगों ने नीचे डायग्राम में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि हमारे पास जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, नाउ जस्ट लुक एट द कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट में हमारे पास ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इस लूप में मूव कर रहा है, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव. ये आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन समझाई जा रही है यहाँ पे, ताकि आगे हम लोग जब भी करंट की बात करेंगे तो आपके ज़हन में रहे कि करंट हमेशा पॉजिटिव से
नेगेटिव की तरफ मूव करता है। दैट इज वाई हम लोगों ने जब डायग्राम शुरू में फील्ड डायग्राम बनाया था तो हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव शो किया था करंट। ठीक है। एंड जब भी हम आपको इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, जो कि हम लोग इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन चैप्टर नंबर 5 वी विल टॉक अबाउट इट। सो हम लोग जब अल्फा बीटा एंड गामा स्टडी करेंगे तो वहां पे आप लोग फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी फॉलो करो। ओके नाउ, okay written some circuit diagrams at this part, it's not too much important but आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा बेटा, जब भी you have a one bigger terminal and a smaller terminal, तो एक होगा तो ये सेल को डिफाइन करेगा। bigger one will represent the positive one and the small one represent the negative one terminal। अगर आपके नंबर ऑफ टर्मिनल्स ज्यादा होंगे तो ये आपके पास बैटरी को शो करेगा। अगर बेटा आपके पास लेट्स सपोज आपको बैटरी में चार्ज, लेट्स अगर आपको सेल्स पता है कि हाउ मेनी सेल्स डू यू हैव, इफ यू हैव 3 सेल, तो आपने 3 टाइम्स ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। 3 सेल्स के लिए आपने इस तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल इन अ बैटरी यू हैव 3 सेल्स, तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होगा तो आपने 3 बनाने। अगर 2 सेल्स है तो यू विल मेक इट 2 longer terminal and 2 shorter terminal like this, ठीक है, for a 2 cell। But if you don't know the number of cells, if the number of cells are unknown or infinite, you don't know the number of cells, so what you will do now, आप लोग 2 terminals बनाओगे, मतलब 1 cell represent करोगे, then 3 dots, then 1 more terminal go ahead, ठीक है। So this represents the unknown cells, okay, जब हमारे पास number of cells define ना हो। इवन यू कैन मेक इट अ डॉट, आप डॉट भी कर सकते हो, आप स्मॉल स्ट्रेट लाइंस भी कर सकते हो। ठीक है ना। पावर सप्लाई, इफ दिस पावर सप्लाई इज एसी, सो आपने उसमें इस तरीके से साइनोसोडियल वेव बना लेनी है, एंड वन टर्मिनल पे आपने पॉजिटिव एंड वन टर्मिनल में भी योर वुड बी नेगेटिव। ओके नाउ इफ यू हैव अ डीसी सर्किट जिसमें आपके पास साइनोसोडियल वेव नहीं होती, वो वन डायरेक्टेड वेव होती है, उसमें आपकी जो करंट होती है वो वन डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसमें आपने सेंटर में कुछ नहीं बनाना, जस्ट मेक अ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स लाइक दिस, और आपने इस तरीके से शो कर। नाउ इफ यू हैव अ फिक्स्ड रेजिस्टर, तो आप लोगों ने सिंपल एक रेक्टेंगल बना लिया। ओके, इट विल बी लाइक अ प्रॉपर स्ट्रेट रेक्टेंगल, और उसके इर्द गिर्द से आपकी सब 2 टर्मिनल्स गुजर रहे होंगे। ओके, लाइक दिस एंड दिस। ये जो साइड पे जो टर्बुलेंस में शो कर रहा हूँ, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। इसके आगे आपका कोई भी वायर या कोई भी दूसरा सर्किट या आपका मीटर, कोई भी चीज कनेक्ट हो सकती है। इफ यू हैव अ रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टर, बेटा नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस टर्म रियोस्टेट, क्योंकि ये आपके सिलेबस से ये टर्म हट गई है। ओके, तो आप रियोस्टेट नहीं यूज करोगे, जस्ट वेरिएबल रेजिस्टर की बात करोगे। ओके नाउ इफ यू हैव अ वेरिएबल रेजिस्टर, तो वेरिएबल रेजिस्टर में सिंपल आप लोगों ने रेजिस्टर बनाना है, एंड यू हैव टू मेक अ इंक्लाइंड एरो इन इट। ओके, तो सिंपल एक आपका रेजिस्टर होगा एंड उसके अंदर एक हमारे पास इंक्लाइंड एरो होगा लाइक दिस। ओके, सो ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर डिफाइन। इफ यू हैव एलडीआर, लाइट डिपेंडिंग आपके पास रेजिस्टर होता है। ठीक है, सो आपने सिंपल रेजिस्टर ही डिजाइन करना है लाइक दिस। ठीक है, आपका रेजिस्टर बनेगा एंड उसके ऊपर आपके पास 2 एरोस बनेंगे। नाउ जस्ट ये आपने ख्याल रखना है कि एरोस की अमाउंट 2 होगी। अच्छा बेटा, एक चीज ध्यान में रखना है, इफ द वर्ड इज डिपेंडिंग, डिपेंडिंग का मतलब है कि वो उसके ऊपर, द वर्ड डिपेंडिंग मीन्स दैट कि एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर उस रिलाई कर रही है। ठीक है, मीन्स इफ द लाइट इज नॉट कमिंग टू एलडीआर, तो वो ऑपरेट नहीं होगा। सो जब लाइट आनी है तो आपने डायरेक्शन लाइट की शो करनी है कि लाइक फॉर एग्जांपल द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ सन, लेट्स कंसीडर करो यहाँ पे सन है और सन से रेजेस पास हो रही है, तो आपने इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ठीक है, नाउ ये मैं आपको ये डायग्राम इस वजह से ये चीज मैंने यहाँ पे ये बोली है, बिकॉज आगे आपके पास जो है, सॉरी, ओके, क्योंकि आगे आपके पास जो है आपके पास लाइट इमिटिंग डायोड्स आएंगे। सो वी आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग हियर कि आपको पता हो कि डिपेंडिंग एंड जब आपके पास इमिटिंग होंगे तो उनमें फर्क क्या होगा। ओके, नाउ लेट्स थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो होता है वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, इट्स अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। बस आपने सिंपल रेजिस्टर ड्रॉ करना है, उस पर एक इंक्लाइन लाइन स्ट्रेट एंड नीचे से उसको स्ट्रेट कर लेना है, हॉरिजेंटल कर लेना है विद अ बेस। ओके, so it's a proper in an inclined L, देखिए सब प्रॉपर आपने एक inclined से L बना। गॉट इट। नाउ फिलामेंट लैंप जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दैट यू हैव टू मेक सर्कल, और सर्कल के अंदर क्रॉस बना लोगे, दैट्स अ फिलामेंट लैंप। अब मीटर जो होता है वो सर्कल के अंदर ए से डिफाइंड होता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर अगेन ये हमारे पास मीटर की तरह ही यूज होता है, इट्स यूज टू डिटेक्ट अ स्मॉल करंट।
उसके लिए आपने सर्कल के अंदर एक अप डायरेक्शन एरो बना लेना है, जिसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा. सो इन सम केसेस यू विल फाइंड आउट कि मीटर का जो एरो होगा वो थोड़ा सा अक्सर इंक्लाइंड भी होता है. ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जब भी पेपर पे बनाओगे, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपका एरो बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है, पहली बात, आप लोगों का अमीटर से रिलेटेड, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड नहीं आता. सो आप लोगों को ज्यादातर अमीटर ही आएगा पेपर में. ठीक है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे बनाया, हमने यूज किया है. नाउ फॉर अ वॉल्टमीटर यू हैव टू मेक अ वी diode. Now, what is a diode? Diode is actually convert your AC circuit into the DC circuit. ठीक है ना, ये आपकी AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है. along with that, डायोड में आप देखो इट्स लाइक अ प्ले बटन. अ प्ले बटन, जैसे आप लोगों के प्ले बटन होते हैं, उसके आगे स्टार्ट का बटन. ठीक है, इट्स लाइक अ दिस. ओके, नाउ बेटा, here it's also defining the direction of the current. अब देखो एरो की डायरेक्शन इस तरफ है, प्ले बटन की डायरेक्शन. ठीक है, तो द करंट विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये लेफ्ट है तो ये राइट की तरफ जाएगा, बट ये राइट टू लेफ्ट करंट नहीं फ्लो कर. ठीक है, ये आपने इसमें जेन में रखा. ठीक है, नाउ वी हैव अ लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे एलईडीज कहते हैं, जो एलईडी स्क्रीन होती है. उसमें बेटा अगेन आपने सिंपल डायोड बना दिया और टू एरोस विल इमिट फ्रॉम द डायोड. ठीक है, इसके ट्राइंगल से इमिट होगी, बाहर निकलेंगी. जब डिपेंड होगा तो एरो रेजिस्टर की तरफ मूव करती है, जब इमिट होती है तो एरो बाहर की तरफ जाती है. अगेन टू एरोस आर इनफ. ओके, नाउ दिस इज द कनेक्शन. नाउ दिस इज डिफाइनिंग द कनेक्शन. जब टू वायर्स आपस में कनेक्ट होती है तो हम इसका कनेक्शन शो करते हैं. स्विचेस, व्हेन योर स्विच इज ओपन, आपने इस सर्किट से, इस डायग्राम से शो करना है कि स्विच ओपन है. जब क्लोज है तो आपने इस तरीके से शो करना है, लाइक योर टर्मिनल्स आर क्लोज. So this is the diagram for an open and closed. Okay. Now let's talk about the direct current. Okay, in DC, जैसे कि हमने पहले बता दिया था कि आपकी फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उससे इन वन डायरेक्शन होती है. इन डीसी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन्स सेम. लाइक सोर्सेज हमारे क्या है, सेल्स हो गए, बैटरी हो गए. आपकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो नहीं चेंज होती. लाइक इफ द करंट इज, हम लोग जब इसको साइनसोडियल बेस में एक्सप्लेन करते हैं लाइक दिस, तो बेटा जब हम एसी सोर्स शो करते हैं तो हम लोग एसी हमेशा इस तरह शो करते हैं. अब आप देखो इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है. आपके पास लेट्स सपोज ये वाला एरिया पॉजिटिव करंट शो कर रहा था, ये वाला एरिया नेगेटिव करंट शो कर रहा है. दिस इज अ पॉजिटिव आई एंड दिस इज द नेगेटिव. आपकी करंट फॉर हाफ ऑफ द साइकिल इट वाज पॉजिटिव वन, फिर जीरो हुई और फिर हाफ ऑफ द साइकिल वो नेगेटिव हो गई. तो यहाँ पे आपके पास वन साइकिल कंप्लीट हो गया था. ठीक है, तो जब भी आप एसी की बात करते हो तो एसी में आपके पास हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल नेगेटिव. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द डीसी, डीसी में ऐसा नहीं हो. डीसी में आपकी लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती. लाइक अगर ये डीसी सोर्स है तो इट्स गोइंग टू बी आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, इसमें से कोई एक सोर्स है. ठीक है, या तो सिर्फ पॉजिटिव लेगा, वो नेगेटिव वाला पोर्शन जो है वो हमारा कट डाउन हो जाएगा, वो हमारे पास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग वो कैसे करते हैं. सही है, सो दैट्स अ डायरेक्ट करंट. ओके, so let's talk about few other diagrams of the direct current. अच्छा बेटा, if your direct current, like here this is, it's your y-axis is representing your current and your x-axis is representing a time, the time second, and this is a current ampere. Okay, so this is the ampere and this is the second. Agar beta, if a direction of the current is same or it's not changing or it's moving in a straight line और horizontal से बिल्कुल straight जा रही है, तो ऐसी करंट को हम लोग स्टेडी डीसी करंट, मतलब वो चेंज नहीं हो. अगर करंट जो है वो आपके पास फ्लिप कर रही है, वो बार बार जीरो हो रही है लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो रही, ऐसी करंट को हम लोग वेरिएबल डीसी करंट कहते हैं. ठीक है, वो वेरिएबल हो जाती है हमारे पास. नाउ सिमिलरली अल्टरनेटिंग क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट रिवर्सेस रेगुलरली. ठीक है ना, द डायरेक्शन, या देखिए या तो वो रेगुलरली रिवर्स हो रही है, सेकंड डेफिनेशन जो कि बेस्ट है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ साइकिल. और इसका सोर्स होता है हमारे पास जनरेटर. ठीक है, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल हमारे पास जनरेटर में सोर्स करंट जो है वो हमारे पास चेंज होती रही. ओके, so let's talk about the diagram for AC source. Okay, now again हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया है, इट्स करंट अगेंस्ट टाइम. So this is the current
which is ampere against time, that is in seconds. अच्छा बेटा, अगर आपके पास एकदम से करंट मैक्सिमम पे जाती है एंड फॉर अ फ्यू सेकंड और फॉर अ फ्यू इंटरवल वो मैक्सिमम पे रहती है, एकदम से वो फिर मिनिमम पे चली जाती है, so such a current is known as steady. मीन्स वो उसके टू ही सोर्सेज है, लाइक उसमें बीच में फ्लक्चुएशन नहीं है, या तो वो फुल पॉजिटिव शो करी है फुल नेगेटिव, लाइक फॉर एग्जांपल इनिशियली 0.1 एम्पियर पॉजिटिव शो करी और एकदम से फौरन माइनस जीरो पॉइंट -0.1 एम्पेयर आपको शो करती है, तो उसके बीच में जो आपके पास फ्लक्चुएशन है जिसमें 0.00 0.009 008 0.5 ये आपको शो नहीं हो रही, तो सच अ फ्लक्चुएटेड करंट इज नोन एज स्टेडी करंट, ठीक है, स्टेडी एसी करंट, ठीक है। इसको और भी आसान कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक 5 एम्पियर से -5 एम्पियर पे डायरेक्ट करंट जंप कर रही है, सो इन सच अ कंडीशन हम ऐसी करंट को कहते हैं स्टेडी करंट। अब एक होती है वेरिएबल एसी, हमारे पास कौन सी होती है, जो विद द टाइम वो वेरिएट कर रही होती है, चेंज हो रही होती है विद द टाइम, राइट। इनिशियली इट इज जीरो, विद द टाइम इट्स इंक्रीजिंग एंड दिस द पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम है, इसके बाद दोबारा से डिक्रीज होना शुरू की एंड इट्स ओवर हियर इट बिकम जीरो, पॉइंट पे हमारे पास इस पॉइंट पे जीरो की, अगेन उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो गई एंड अगेन पे डिक्रीज हो रही है, लाइक ओवर हियर, ठीक है। तो दिस इज आवर एसी, वेरिएबल एसी। लेट्स टॉक अबाउट द अमीटर। अच्छा बेटा, अब अमीटर क्या है? अमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। इट इज अ डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। हमेशा याद रखिए दैट योर अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, ओके, इन अ सीरीज टू द सर्किट। आपने कभी भी अमीटर को पैरेलल नहीं कनेक्ट करना, लाइक सीरीज किसे कहते हैं बेटा, लाइक फॉर एग्जांपल द लैंप इज ओवर हियर और आप उसके बिल्कुल साथ ही अमीटर कनेक्ट कर ले, तो इसको कहते हैं हम लोग सीरीज, ओके। तो दिस इज द सेल, ये हमारे पास सीरीज का कनेक्शन, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि हमेशा अमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, इट हैज अ वेरी लेस रेजिस्टेंस, तो ये आपके सिस्टम पे आपकी जो सर्किट है या उसके बल्ब की रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करती। So you have to connect the ammeter in a series. It is connected in a series of a circuit. अच्छा, and one more thing. The positive terminal of a meter is always connected towards the positive terminal of a सेल। अगर देखिए मेरा पॉजिटिव टर्मिनल मीटर का यहाँ पर मैंने मीटर यहाँ पे लगाया, सो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी ओवर हियर, ताकि वो पॉजिटिव की तरफ हो, ठीक है। और मेरा जो मीटर का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो नेगेटिव की तरफ हो, ठीक है। तो जस्ट लुक एट ओवर हियर, द पॉजिटिव टर्मिनल इज ओवर हियर एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ अमीटर जो होते हैं, एक सिंगल वन इज अ सिंगल मूविंग कॉइल अमीटर होता है, जो कि हमारे पास सिर्फ डीसी सोर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। फिर एक होता है हमारे पास मल्टीमीटर होता है, जो कि हमारे पास एसी एंड डीसी बोथ सोर्सेस फाइंड आउट कर सकता है। बेटा अमीटर जो है वो आप लोगों ने मैं आप लोगों को टू शो द डायग्राम ऑफ अमीटर। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द अमीटर। अच्छा बेटा, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द अमीटर, तो बेटा मैंने कुछ पिक्चर्स आप लोगों के लिए यहाँ पे रखी है। दिस इज दिस सिंपल अमीटर, अगर आप देखो ये अमीटर है बेटा, इसमें आपके पास दिस इज द एनालॉग अमीटर, ठीक है। आपके पास जो ये ब्लैक टर्मिनल है ये आपके पास कॉमन होता है, एंड दिस रेड वन इज द वन जिसके जो हमें बेसिकली हमारे यहाँ से हमारे पास बेसिकली हम जो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, दिस इज फॉर अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस ब्लैक वन विच इज अ कॉमन वन, इस यहाँ पे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन शो होती है कि हमारे पास कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। अगेन दिस इज अ टू स्विच अमीटर। ये मैं आप लोगों को क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग मल्टीमीटर में भी अभी पढ़ेंगे। बेटा अगर आप इस स्केल में देखो ना, यू हैव अ मीटर, ये आपके पास ब्लैक जो है ये कॉमन है, अगर आप इसमें फर्स्ट वाले के साथ कनेक्ट करते हो जो कि ये फर्स्ट रेड है, इसके साथ आपने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर लिया, इसके साथ आपने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया ओवर हियर, एंड नाउ अब आप जब इसमें से करंट फ्लो करोगे तो आपके पास जो डिफ्लेक्शन होगी वो जब शो होगी, सो इट दिस रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम 0 to 1, ये आपको 0 to 1 शो करेगी। इट मीन्स दैट यू हैव योर सिस्टम इज मोर सेंसिटिव एंड आपके पास जो स्केलिंग है वो कम है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा आई जस्ट वांटेड कि आप इसकी स्केलिंग बढ़ा दो, तो इट मीन्स दैट यू आर रिड्यूसिंग इट्स सेंसिटिविटी, आप सेंसिटिविटी डिक्रीज करो। सेंसिटिविटी डिक्रीज करने का क्या मतलब है, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट विद अ ग्रीन। मैंने कहा कि आप यहां से जो रेड है उसको हटा के इस वाले के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर लो, अब बेटा आपको जो करंट शो होगी वो निचले स्केल के लिहाज से शो होगी। So it your if your current is in between
0 to 3 एम्पेयर तो आपके पास ये निचले स्केल में शो होगी। अब इसमें फर्क क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी करंट जो है वो 2.1 एम्पेयर है। अब मेरी करंट जो है वो यहाँ पे कहीं पे लाई करी होगी, लाइक मेरी जो ये नीडल है वो यहाँ पर आ जाएगी, लाइक दिस, इस तरीके से आ जाएगी 2.1। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, इट्स अ 2.1 यहाँ पर है। अगर ये इसके सेंटर में कहीं आ रही है तो हम लोग एक रफ एस्टिमेट कह सकते हैं, जो क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी लो हो गई है, वी कैन गो विथ इट के लेट्स सपोज ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गई 2.05। ठीक है ना, 2.1 ये तो 2.05 होगी। लेकिन जब मैंने सेंसिटिविटी इंक्रीज की थी, जब मैंने सेंटर वाले में कनेक्ट किया था जिसमें मेरे पास स्केलिंग कम थी लेकिन मेरी सेंसिटिविटी ज्यादा थी, तो मेरे पास लेट्स सपोज अगर मेरी करंट जो थी वो यहाँ पे लाइक करी थी, तो वो सो इट मीन्स दैट कि ये वाली वैल्यू चूंकि सेंटर है 0.2 एंड 0.3 की, सो इट्स 0.3। लेकिन अगर उसके साथ है तो इट्स 0.32, 0.34, 0.368 एंड देन 0.4। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी ज्यादा थी तो उसकी आपके पास ज्यादा अच्छी वैल्यू शो करी थी। अगर आपकी करंट 0 से 1 एम्पेयर के बीच में, सो यू कैन यूज मोस्ट सेंसिटिव यू कैन यूज, अगर आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, सो यू गाइस कैन गो फॉर अ सेंसिटिव 1। ओके, आप सेंसिटिव 1 के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, अगर आपकी करंट 1 से बड़ी है, तो आप फिर जो है अपने जो आपका लेस सेंसिटिव जो स्केल है आप उसकी तरफ मूव करेंगे, जो कि 0 से 3 है। और है सेइंग दैट हाउ टू यूज मल्टीमीटर, आपने कैसे यूज करना है? फॉर अ फ्यू मिली एम्पेयर्स। ठीक है, आप इसको मिली एम्पेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल सेट द रेंज, हम लोग रेंज सेट करेंगे अप टू लेट्स सपोज मैं 10 मिली एम्पेयर की सेट करते हैं, एंड कनेक्ट द डिवाइस इन सीरीज विद द सर्किट। इफ द रीडिंग इज ऑफ स्केल, अगर मेरी रीडिंग ऑफ स्केल आ रही है तो मैं उसके बाद अपनी रेंज इंक्रीज करूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने शुरू में 10 मिली एम्पेयर की रेंज सेट, अगर मेरी जो रीडिंग है वो फुल राइट को मूव कर गई है और मतलब ये मेरी लास्ट वैल्यू इधर थी, वो स्केल से आउट हो गई, ऑफ स्केल हो गई है, तो मैं कहूंगा ओके मेरी 10 मिली एम्पेयर से बड़ी वैल्यू, सो आई विल गो फॉर 100 मिली एम्पेयर लेट्स सपोज। तो मैंने क्या किया, मैंने रेंज इंक्रीज कर ली, आई इंक्रीज अ रेंज, बट ओवर हियर लेट आई मेक इट लाइक दिस, मैंने रेंज इंक्रीज की है, रेंज इज इंक्रीज, रेंज इंक्रीज हुई है, लेकिन मेरी जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज हुई है। ओके, एंड मैंने सेंसिटिविटी जो है वो मैंने डिक्रीज कर दी फॉर दिस सिस्टम। तो इफ द रीडिंग इज ऑफ स्केल वी रिड्यूस द सेंसिटिविटी, हम सेंसिटिविटी डिक्रीज करेंगे एंड इंक्रीज द रेंज लेट अप टू 100 मिली एम्पेयर। तो जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि अगर मेरी जो रेंज है वो उससे बाहर आ रही है, सो हम लोग अपनी रेंज को सेट कर लेंगे। ठीक है, सो हम अपनी सेंसिटिविटी डिक्रीज कर लेंगे और रेंज बढ़ा देंगे, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, ये हमें यहाँ पे 0.02 की सेंसिटिविटी शो करे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो इस स्केल पे इट इज जस्ट शोइंग अस 0.1 सेंसिटिविटी, मतलब बहुत मिनिमम सेंसिटिविटी शो करे। सो अपर स्केल को देखें आप तो इट्स शोइंग द सेंसिटिविटी ऑफ 0.02। ओके, एंड लोअर स्केल को चेक करो तो वो आपको सेंसिटिविटी शो करे दैट इज 0.1। तो इतना फर्क आ रहा है, वैल्यू में देखिए कितना फर्क आ रहा है। तो टोटल 1/10 का फर्क आ रहा है, सो दैट्स वाई हम लोग जब हम बड़ी वैल्यू की तरफ जाने लगते हैं तो हमारी सेंसिटिविटी लो होने लगती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मल्टीमीटर। बेटा व्हाट्स अ मल्टीमीटर? जनरली मल्टीमीटर जो होता है, आपके देखो मल्टीमीटर दो टाइप्स के होते हैं, एक एनालॉग होता है, एक आपका डिजिटल होता है। वो है जो मैंने आपको पिक्चर यहाँ पे शो करो नीचे, दैट्स द डिजिटल वन। एनालॉग में इसी तरह आपको नीडल की तरह होता है और उसमें आपको रेंजेस गिवन होती है, सेम जैसा आपका मीटर है इसी तरीके का आपका मल्टीमीटर भी होता है। अच्छा बेटा, अब इसको अगर आप गौर से देखें तो वो है there we have a one terminal that is common, COM जिसके ऊपर लिखा हुआ है, this terminal is a negative। ये दो टर्मिनल्स हमारे पास पॉजिटिव वन है। अब अगर आप इस पे आप इसमें जब अगर डिटेल्स देखिए तो इसमें डिटेल्स लिखिए दैट इट इज यूज अप टू 200 मिली एम्पियर। अगर आपके पास वोल्टेज होगी दैट इज रफली 250 वोल्ट, और आपके पास मतलब ये इस कंडीशन में यूज हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट ये आपके पास वोल्ट, रेजिस्टेंस, मिली एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज हो सकते हैं। अगर आपकी करंट की रेंज 10 एम्पियर से मैक्सिमम है तो आपने यहाँ पे फिर अपना पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। मल्टीमीटर क्या करता है बेटा? मल्टीमीटर हमें हेल्प आउट करता है वोल्टेजेस मेजर करने में भी, रेजिस्टर मेजर करने में भी और करंट मेजर करने में भी। अगर हमें वोल्टेज मेजर करनी है, अगर मिली एम्पेयर है, तो हम लोग अपनी जो स्केल है उसकी डायरेक्शन मिली वोल्टेज की तरफ कर देंगे। अगर हमने वोल्टेजेस, अगर ये जो एरिया है, ये जो साइन है, ये डीसी का शो करे, ये एसी का साइन। ठीक है, दिस इज दी दिस वन इज शोइंग के
हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस है, दिस इज द ओम्स। बेटा ये जो साइन है दिस इज द अलार्म। अलार्म किससे यूज होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एक वायर ली नेगेटिव और यहाँ से आपने एक पॉजिटिव वायर ली, और आप एक सर्किट को चेक करें, तो आपने सर्किट की वायर को जब इसके बीच में कनेक्ट करोगे ओवर हियर, सर्किट की वायर को इधर मैं कनेक्ट करता हूं और मैं अलार्म पे रखता हूं तो ये बीप करेगा। अगर ये वायर कहीं से कट होगी, डिस्कनेक्टेड होगी, तो ये अलार्म बीप नहीं करेगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा ओके, तो ये सर्किट का इस वायर क्या प्रॉपरली ज्वाइंट है कि नहीं, या कहीं से सर्किट डैमेज तो नहीं है। नाउ दिस इज दी, हमारे पास दीज आर दी एम्पियर्स। फर्स्ट आपके पास ये एम्पियर्स में ये क्वालिटी है कि ये फॉर बोथ यू कैन यूज दिस गिव फॉर बोथ एसी एंड डीसी। बस इसमें ये है कि ये माइक्रो एम्पेयर शो कर रहा है, ये मिली एम्पेयर शो कर रहा है, दिस इज द एम्पेयर स्केल। ठीक है, तो दिस इज द मल्टीमीटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वोल्टेज। Okay, so beta, what is a voltage? It's actually it is a difference between the charges at two specific points. ठीक है, so generally the difference between two charge point in an electric circuit or pressure from an electric circuit or supply. ठीक है ना, so generally हम लोग कहते क्या है, the best definition is the upper one. Okay, the difference between two charge point in an electric circuit. For example, if I'm having a bulb over here और मैं उसका चार्ज फाइंड आउट करना, उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे पहले इसकी वोल्टेज चेक करूंगा और इस पॉइंट पे इसकी वोल्टेज चेक करूंगा और इसका डिफरेंस लूंगा, और इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कि कितनी वोल्टेज हमारे पास क्रॉस हुई। फॉर वोल्टेज ऐसा यूनिट इज वोल्ट। ओके, so voltage, the SI unit of the voltage is volts. We represent it with V. Generally हम लोग इसको V से represent। Okay, right. Okay, so क्वेश्चन राइजेस कि सो व्हाट्स अ वोल्ट, ये बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सबसे पहले डेफिनेशन में रखिए, इट्स अ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टू चार्ज पॉइंट अराउंड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट के अक्रॉस टू पॉइंट्स पे चार्जेस फाइंड आउट करता हूँ, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक, उसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज। अब बेटा देखो, हमने चार्ज की बात की, इट मीन्स दैट कि वोल्टेज जो है, अब वोल्टेज इज डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। ठीक है, so it's very important to know the formula for a voltage. Volt is equals to work done upon charge. That's a formula. कि कितना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन इज इन अ जूल्स एंड द चार्ज इज कूलम्स, so J upon C is also equals to volt. Okay, now this is the formula. ये आपको मैंने कन्वर्जन भी बता दी। तो कितना वर्क डन कर रहा है एक चार्ज, इसको कहते हैं हम लोग वोल्टेज। ठीक है, वोल्ट। अब बेटा जनरली वोल्टेज जो है एक बहुत बड़ी टर्म है। आप लोग जैसे मैथ्स में सेट्स और सबसेट्स पढ़ चुके हो, सो इफ आई एम गोइंग टू कॉल इट कि एक हमारे पास एक वो है, हमारे पास एक सेट है, उसमें हमारे पास लेट्स सपोज टू सबसेट्स हैं। वन इज, लेट कॉल इट this biggest set is a voltage। ठीक है, एंड ये जो वोल्टेज है इसकी टू सबसेट्स है, नंबर वन इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड द नंबर टू इज ईएमएफ। ये टू सबसेट्स है, एक है पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड इज ईएमएफ। अब इन दोनों में क्या फर्क है, लेट्स टॉक अबाउट इट। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या फर्क है। सो okay, so voltage is further divided into two portions. Number one is EMF. EMF means better supplier, like आपकी बैटरीज हो गई, आपकी बैटरीज, आपके सेल्स, ये सारे आपके पास सप्लायर्स। ठीक है, एंड आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कंज्यूमर होता है, जो यूज कर रहा था, लाइक आपके बल्ब हो गए, फैंस हो गए, आपके टेलीविजन हो गए, टीवी स्क्रीन हो गई, आपके रेडियोस हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए। सो दीज आर दी योर कंज्यूमर। सो ये एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। देखें बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने नोट किया हो, जब मैं ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्लेन भी कर रहा था, ये वाली एग्जाम्पल जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था अक्रॉस अ बल्ब, तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया था। अच्छा बेटा, नो इनफ, अच्छा बेटा इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इनफ, ओके बेटा, आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है
कि आप लोगों ने वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को यूज करना है, आप लोगों ने वोल्टेज का यूजेज कम से कम करना है। एग्जामिनर जो है वो इन इस वोल्टेज की बजाय ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा पसंद भी करते हैं। उनको पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर है कि नहीं, सही है। सो मोस्टली यू हैव टू यूज अ वर्ड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं भी आगे लेक्चर्स में ज्यादातर यही वर्ड यूज करूंगा। सो व्हाट्स एन ईएमएफ? The electrical work done by a source in moving a unit charge around a complete circuit। एक ईएमएफ क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज को सोर्स मूव कराता है अराउंड अ कंप्लीट सर्किट, उसको कहते हैं हम लोग ईएमएफ। ठीक है। नाउ इसके लिए मुझे एक डायग्राम बहुत पसंद है। आई जस्ट कॉपीड अ डायग्राम ओवर हियर। अच्छा बेटा, जस्ट लुक एट ओवर हियर, ये बड़ी प्यारी डायग्राम है। जस्ट हियर, ये आपकी बुक से डायग्राम ली है मैंने। Just look at this. This is a Mr. Coulomb. जो Mr. Coulomb किसे कह रहे? We are calling basically this person is a charge। ये हमारे पास चार्ज, ठीक है। और ये चार्ज जो है ये वर्क डन कर रहा है। He is doing some work done, ठीक है। तो चार्ज ने वर्क डन किया, वो देखें पॉजिटिव टर्मिनल से वर्क डन लेके निकला और वो ट्रैवल करके बल्ब के पास पहुंचा। उसने बल्ब पे वर्क डन किया, बल्ब से वर्क डन करने के बाद उसका वर्क डन खत्म हो गया। उसका जो बंडल्स थे उसने वो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए एंड उसके बाद वो खाली होके वापस आया चार्ज के पास एंड अगेन उसने अपने आप को रिफिल किया एंड सो ऑन, उसने मूव करना शुरू कर दिया। सो ये आपको डिफाइन कर रहा है कि व्हाट इज अ वर्क डन। जो चार्ज आपका वर्क करता है किसी भी स्पेसिफिक सोर्स पे, इसको कहते हैं ईएमएफ। ओके, सो the electrical work done by a source in moving a unit charge around a complete circuit. For example, a 12, अगर मैं कहता हूं बेटा we have a 12 volt battery, इसका मतलब है कि 12 joule of work is done on a 1 coulomb charge moving in a circuit, correct? So 12 joules of a work done हुआ है 1 coulomb of charge पे। मतलब एक पर्सन था, उसने 12 कूलम्स का 12 जूल्स का वर्क डन लेके चला था, मूव किया था अक्रॉस अ कंप्लीट सर्किट। ठीक है, तो दिस इज अ वोल्ट। अगर आप कहते हैं 220 वोल्ट, इसका मतलब होता है कि 220 वोल्ट की करंट जो है वो एक कूलम लेके मूव कर रहा है। ठीक है, तो द यूनिट अगेन योर ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, इट्स अ जूल अपॉन कूलम। नाउ व्हाट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस? द वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज पासिंग थ्रू द कंपोनेंट। एक क्या वर्क डन होता है यूनिट चार्ज से जब वो एक कंपोनेंट को पास करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जो कि ऊपर वाला एग्जांपल थी, इस वाली एग्जांपल में जो वर्क डन बल्ब पे हो रहा है, जो वर्क डन बल्ब पे हो रहा है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप देखो बल्ब से पहले कूलम के पास एक एनर्जी सोर्स, मतलब एक उसके पास वर्क था जो कूलम के पास, लेकिन आफ्टर द पासिंग थ्रू द बल्ब उसके पास वो वर्क डन खत्म हो गया। तो अगर आप इसका डिफरेंस लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बल्ब ने कितना कूलम को कितना वर्क डन करना पड़ा है इस बल्ब। सही है। सो जो वर्क डन आप किसी सोर्स पे करते हो वो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जब आप वर्क डन सोर्स से जब आप वर्क डन सप्लायर से लेकर आते हो उससे हम लोग कहते हैं ईएमएफ। तो हियर दिस इज ईएमएफ। बैटरी ईएमएफ शो करती है एंड बल्ब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है इन दिस कंडीशन। ओके, अगेन सेम फॉर्मूला सेम क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, इधर यहाँ पे मैंने शो किया है कि मेरे पास सोर्स से यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट वोल्टेज आ रही थी और वो यहाँ से जब पास ऑन होके यहाँ पे सिर्फ 6 वोल्ट रह गई है, तो मेरे पास कितना वर्क डन हुआ है बल्ब पे? तो आप करोगे 12 माइनस 6, दैट इज 6 वोल्ट। तो हमारे पास 6 वोल्ट का वर्क डन हुआ है इधर। ओके, नाउ so if you have a 6 volt bulb, it means that 6 joule of energy is converted by the 1 coulomb of charge into the light and a heat energy। 6 वोल्ट बल्ब क्या मतलब होता है कि 6 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट की है 1 कूलम ऑफ चार्ज ने लाइट और हीट में। लाइक अगर मैं कहता हूं मेरा 220 वोल्ट का फैन है, इसका मतलब है कि 220 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो 1 कूलम ने कन्वर्ट की है इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, जिसकी वजह से फैन रन कर रहा है, एंड अ हीट। ओके, नाउ EMF. It's a EMF. Chemical or the other form of energy is converted into the electrical energy। EMF में आपके पास जो chemical energy होती है, other form of energy होती है, वो convert होती है आपके पास electrical energy में। Like for example, when we talk about the hydel power plant, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हाइडल पावर प्लांट में टर्बाइन, जैसे हम लोगों ने बैक इन ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 1 के एंड में पढ़ा था,
व्हेन यू आर स्टडीइंग द एनर्जीज, हमने वहां पे पढ़ा था कि हाइडल पावर प्लांट से वाटर जब फॉल होता है इनटू द टरबाइन, तो टरबाइन के वो फैंस को रन करता है। ओके, फैंस हमारे पास यू रन होते हैं, और जिसकी वजह से फैन के रन होने की वजह से यहाँ पे चूंकि टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जैसा मैकेनिकल एनर्जी उससे शाफ्ट निकलती है, वो शाफ्ट जो है वो हमारे पास जनरेटर को रन करती है, और जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जनरेटर का टॉपिक अभी हमारा आएगा भी कि जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। ओके, तो सो आपके पास जो फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, दैट वाज अ केमिकल एनर्जी, या आपके पास हाइडल एनर्जी थी जो कि कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। केमिकल एनर्जी लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई डीजल इंजन है, या कोल से आप कोई पावर प्लांट रन कर रहे हो, या पेट्रोल से, या आपकी कार को ही देख लें, आपके घर में जो जनरेटर्स होते हैं उसमें आप लोग फ्यूल इनटेक करते हो, दैट इज अ केमिकल। फ्यूल केमिकल होता है, फ्यूल से आपका जनरेटर रन होता है, दैट इज अ मैकेनिकल। और मैकेनिकल से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इससे आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस इज हाउ आपके पास एक कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज होती है। सो ईएमएफ में हमेशा केमिकल से आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी इसके उल्टा चलता है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लाइक अगर फैन की बात करूं, तो फैन आपके पास काइनेटिक एनर्जी बनाता है, बल्ब आपके पास हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, हीटर जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, स्पीकर जो है वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।